will request you. You will be sincere enough to try to accommodate it. This is a personal thought that I have shared with you. Thanks, personal, so I cannot really say, but thank you for encouraging and motivating us, and we really appreciate all these motivating statements, and I really thank you. Next, Yes, please. Thank you, sir. Mr. Sharma, welcome. Hello. Good afternoon, Mr. Dave. This is PK Sharma from KP1 Plot Owners Association, RWA. I have seen the revised plan where you have promised that completed the leftover work in KP1, which was not earlier in your plan. But I have a really one doubt, because that STP has to be constructed, club has to be constructed, and some major activity has to be done. I am apprehensive whether it will be completed within 6 months or not. First thing. Second question is that since we have already having a maintenance agreement with JAL, and there is a specific amount has already been mentioned in that agreement for maintenance. So, but your company is likely to do in that case where we all supported you. Have you changed that maintenance plan, or it will continue as per that our original agreement? Sir, I'll answer the second question first, and first question I will request my project in charge, sir, Bansi sir, to answer. But the second part on maintenance, I can say we have terminated, we have asked for termination of that contract, and we have asked for fresh execution of the contract directly with the home buyer, and that will be in lines with the earlier, your allotment letter and earlier agreement only. We do not have any intentions to change anything. Only thing is that we need to have control of construction as well as maintenance in order to provide good service. Otherwise, whatever we say, if we do not have construction and the maintenance in our hands, then we are without weapons, तो फिर तो काम ही नहीं हो पाएगा. So therefore वो हमने मांगा हुआ है. हमने जहां तक आपकी पैसे आपने दिए हुए हैं, वो पैसों भी हमने रिफंड मांगा हुआ है, so that we can take it in your account in directly with us. तो ये सारा हमने प्लान में मेंटेनेंस के ऊपर क्लैरिफाई किया हुआ है. On the first question, Bansal ji, you are I will respond to that. I appreciate your answer regarding the second question. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. As per CBRE report, this Kensington Park plots, this is a completed project in 2017, but as you mentioned, STP is yet to be completed, and there may be other electricity provision or road, anything is left over. We will immediately, the day we are there, we will start immediately, first priority, we will complete, and whatever is technically left, water, electricity, roads, that will be completed. Okay, thank you. That was I'm saying it. I don't think that how you will be able to complete STP can be done in 6 months. That's my concern, because without having a sewage facilities and proper water and electricity facilities, the people will not like to come. They are, and if they're not likely to come, that maintenance will not be generated as per your expectation. In that case, your expenditure will be more rather than the maintenance income. That's my we will take care. You have a valid point. Bansal ji, आप शर्मा जी से offline discussion करके I will interact. मतलब किस तरह करेंगे? You just talk to him. शर्मा जी, आपका नंबर chat box में share कर दीजिए. Bansal ji will call you. Thank you. So nice of you, Mr. Dave. I hope so. You have a good luck on this time. सर, आप लोगों के हाथ में है अभी. मैं तो आप लोग अभी इस बार बिना फियर के सिर्फ हमें वोट करोगे तो वी हैव I'll let you the one thing. I'll tell you the one thing, because most of the people have already burned their finger within
private colonizer. So everybody is apprehensive as far as the NBCC is concerned. We have some soreness in our heart, being that Navratna company of the government, it will not ditch us. So that is this fear is नहीं likely सर, to be. बट हर प्राइवेट कंपनी एक जैसी नहीं होती और हर गवर्नमेंट I agree. You have quoted Reliance also. एवरी कंपनी इज यूनिक। Yeah. आप ये तो है कि आप मेरे को बोल सकते हो, आप सीधा मुझे बात कर सकते हो, आई एम देयर फॉर यू, और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और मेरी पूरी टीम रहेगी। सो वो तो कंफर्ट एडिशनल है ही ना आपके पास। वी आर सो अप्रोचेबल एंड डिसीजन मेकिंग तो आपने देख ही लिया, हम लोग इसी तरह करते काम। Yeah, no, I'm happy. Last time I have pointed out this that small mistake where that you have shown that KP1 plotted one area is completed, but on my request you have amended. I appreciate that. Insights हमें काम आ रहे, so I'm really thankful to you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Mr. Prem will be done. सर बताइए। आलोक जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आई एम प्रेम खमेसरा एंड हमारा गार्डन आइल्स स्कीम, आई रिप्रेजेंट दैट। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन। सो आपका जब सबसे पहले प्लान देखा था तो आई थॉट यू जस्ट कम टू सपोर्ट एनबीसीसी। बिल्कुल वो ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन लास्ट वेबिनार के बाद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस दैट यू हैव शोन, it's very good. Thank you so very much. At least now we can see that there is a fire to, at least listen to us. अभी तक तो होम बायर्स बेचारा समझ के छोड़ दिया गया था। नहीं आप लोग के really appreciate that. नहीं हो सकता। Now I have ना प्लान ना भी सक्सेसफुल। जी ये बात नहीं समझे बेवकूफ है। जी, I have 3 questions of you. Number 1 is हमारा जो गार्डन आइल्स स्कीम है, इसको आपने 24 महीने के बाद इसकी शुरुआत करी है, ऐसा क्यों किया है? नहीं वो 0 डेट से ही है सर। वो आप लोग को मैंने लास्ट टाइम भी क्लैरिफाई किया था, अभी चाहिए तो हम इस बार पीपीटी में लिख भी देंगे। ऐसा कोई नहीं है कि वो 24 महीने के बाद शुरू करेंगे। सबकी प्लानिंग एक साथ होने वाली है, सब एक साथ शुरू होंगे और सभी प्रोजेक्ट को हम प्लान आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अगर 2 मंथ्स में आपका अचीव करना है तो मैं 24 से स्टार्ट करूंगा तो होगा ही नहीं ना सर। वो तो आप समझ लीजिए वो नहीं है, वो मिसकम्युनिकेशन है। आई एम क्लैरिफाइंग टू यू, और हम अभी प्रेजेंटेशन लाइन को इनकॉर्पोरेट करेंगे। जस्ट क्लैरिफाई दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एवरीथिंग टुगेदर। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो कोई नहीं है कि मतलब 1 महीना ये चालू किया 2 महीना वो ऐसा है, बट नॉट की 1 साल बाद कोई प्रोजेक्ट शुरू करने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं। टावर खड़े हुए हैं 2 साल में, तो आप वो गार्डन आइल्स को पूरे को करके निकल सकते हैं बाहर। सो दैट वाज नंबर 1. Number 2, I hope I have addressed your concern, right? One very important question is, are you in touch with the IRP, his team, his legal team, as to whether your plan is 100% code compliant? Because that is the pretext they are taking for going to Supreme Court. They are saying कि कोड कंप्लाइंट नहीं है प्लान्स, तो हमको टाइम चाहिए इनको कंप्लाइंट बनवाने के लिए। नहीं वो आज क्वेरी आने वाली है, अगर कुछ है हमारे में तो मेन तो कोड कंप्लाइंट के लिए डिसेंटिंग क्रेडिटर वाला था। मोमेंट आई हैव गिवन अंडरटेकिंग दैट सेटिस्फाइज, और अंडरटेकिंग मैंने कोई अपने दिमाग से नहीं दी है, उन लोगों ने हमें क्वेरी पहले ही रेज की थी लास्ट टाइम के प्लान के ऊपर। मेरा वेबएक्स कॉल भी हुआ विद देयर लॉयर्स एंड दे एक्सप्लेन टू मी कि अंडरटेकिंग नहीं दोगे तो आपका नॉन कंप्लायंट होगा, और ये हमें दोनों एप्लीकेंट्स को उन्होंने समझाया था, तो हमने दे दी। तो अब हमारे आपके पास यदि कंप्लायंस से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं आती है और यदि आप हमको ये कम्युनिकेट कर देते हैं, तो देन वी विल टेक द IRP लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बिकॉज हमको ये मालूम है सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गई और ये टंग गया मामला, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रीपोन कर दिया वैकेशन अपनी। तो हम क्या करेंगे, देखो क्वेरी तो कुछ भी आ सकती है, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि नहीं आएगी, आज आ जाएगी। मोस्टली मुझे बोला गया है कि आज दे देंगे, हम उसका जवाब भी दे देंगे तुरंत, मतलब यदि ये 2 चीज आप शेयर कर लें हमसे, क्योंकि यदि हमको ये पता चल जाता है कि एक प्लान भी ऐसा है जो फुल्ली कंप्लायंट है, तो देन वी विल टूथ एंड नेल हम इसको कंटेस्ट करेंगे कि ये बिल्कुल कोई इसको आगे पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो एक्स्ट्रा टाइम। ये टेम्पो बिल्टअप हुआ है सर, बहुत मेहनत से हुआ है, ऑनेस्टली ये मेरे लिए भी इजी नहीं था,
हमारी पूरी टीम ने डे एंड नाइट काम किया, आई शुड नॉट से बट आई एम सेइंग, और ये लेवल तक लाया हमने, एक भी एक्सटेंशन मांगा नहीं आज तक, जब जो बोला सब किया, ओके, और सब टाइमली किया, एज पर प्रोसेस किया है। तो अभी हमने खुद से अंडरटेकिंग दे दी, नॉट दैट ही हैज टू आस्क मी अगेन। एक बार समझाया तो हमें समझ में आती है, एक बार में बात है, 2 बार बोलने की जरूरत नहीं है, तो हमने फिर वो डाल दी थी उसमें। सो ये सारी चीजें हमने कर चुके हैं, डिसेंटिंग का पूरा एक्सप्लेन किया, आप देखो ना मेरे प्लान में, वो हमने देख लिया है। ठीक है। एनीवेज आपका पॉइंट वेल टेकन है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसे ही क्वेरीज आए, जैसे हम। यस, थर्डली लास्टली आपने कहा है कि आप 3000 करोड़ रुपए के करीब वर्किंग कैपिटल लेके आएंगे फॉर रियल एस्टेट एक्टिविटी। 2000 करोड़ रुपए। तो जो स्कीम वाइज जो एस्क्रो अकाउंट बनेगा वो डे 1 से जो आपका शेयर है उस एस्क्रोज में आ जाएगा? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। प्रोजेक्ट वाइज एस्क्रो अकाउंट बनाएंगे, 1000 करोड़ की हम मास्टर लाइन लेंगे, उसमें से प्रोजेक्ट वाइज डिसबर्स करेंगे बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। बिकॉज मेरे को अभी तो सब्जेक्ट टू बैंक व्हाट दे आर सजेस्टिंग, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू कंप्लाई विद देयर सैंक्शन टर्म्स, बट जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है हम लोग मास्टर फैसिलिटी लेंगे और प्रोजेक्ट एस्क्रो अकाउंट्स में डालेंगे उसको। और जो हमारा बाकी कैश फ्लो है, जैसे रोड का कैश फ्लो है और कैश फ्लो है जो मैंने वो चार्ट में दिखाए हुए है, वो सारे भी मास्टर से होके प्रोजेक्ट में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे प्रोजेक्ट का बिजनेस प्लान की रिक्वायरमेंट होगी टू कंप्लीट इन ऑर्डर टू कंप्लीट इन व्हाट टाइमलाइंस ये है। और आप लोगों के जो सोल्ड रिसीवेबल्स आएंगे वो डायरेक्टली प्रोजेक्ट वाले अकाउंट में आएंगे और वो हम सीधा प्रोजेक्ट के अकाउंट से ही यूज करेंगे, इज व्हाट माय थॉट प्रोसेस इज। अभी इसमें बैंक्स क्या चेंजेस करवाएगी या नहीं करवाएगी हम आपको बता देंगे, बट वी आर वेरी क्लियर, हम आपको सब स्टेटमेंट्स भी ट्रांसपेरेंटली शेयर करेंगे प्रोजेक्ट वाइज। जो परफेक्टली ऑलराइट, मैं 2 मिनट केवल और लूंगा। हम 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो टेल एंड वाले प्रोजेक्ट्स हैं, हमको आपने बोला 42 महीने के अंदर डिलीवरी देंगे, एक और है जिसको और भी उसके भी बाद में। Just 1 minute, मैं 42 कर दूंगा। Just let me complete. So as a allotee, our concern is only this कि यदि आपने शुरू से फंड्स अलॉट कर दिए प्रोजेक्ट को, तब तो फिर आप रिपोन करके और जल्दी कर देंगे। मुझे मालूम है 2 साल के अंदर आप गार्डन हाइल्स को फिनिश कर देंगे, इतने बने हुए टावर्स हैं वो फिनिश हो जाएगा। लेकिन यदि आप फंड ही अलोकेट करेंगे 2 साल 2.5 साल के बाद में हाँ, तो फिर वो नहीं होगा। सर गार्डन आइल इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। बस तो यदि आप फंड शुरू से अलोकेट करते हुए चलेंगे देन श्योर आप कंप्लीट कर दोगे। फंड अलोकेट करेंगे, आप इसको दोबारा मैं बोल रहा हूँ, शुरुआत से सभी फंड को प्रोजेक्ट को फंड अलोकेट करेंगे, अदरवाइज मैं ही डिफॉल्ट में चला जाऊंगा, मेरी टाइमलाइन कंप्लीट नहीं होगी और मेरा तो एंडेवियर है आपके साथ मिलके जल्दी करने का। तो don't have any doubt about it. Okay. Very good. Thank you so very much. Thank you, Alok ji, and Godspeed. Thank you, sir. Next question. Next. I think Amit Anand. Mr. Amit has joined. Amit ji, welcome. बताइए Amit ji. Hi sir, this is Amit Anand. I'm sorry I'm not on the video. I'm having a little bit of a problem. No issues, sir. No issues. From Cosmos. हेलो, आपका वॉइस सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, थोड़ा जोर से बोलेंगे सर। Can you hear me now? Yeah, better. This question already has been now put up by Mr. Prem, who spoke earlier than me. Firstly, I'd like to thank Suraksha for being very, very transparent in their webinar and taking up the queries of the home buyers, and also being very, very vigilant and being time speed in getting them the last webinar suggestions onto the plan. So my question was again related to the plan being compliant, that Mr. Prem has asked in detail, but I'll just ask further, what as a home buyer we can do that the IRP ensures that there is no more extension if one of the plans is compliant and it is put to vote. What we can do as a home buyer? सर उसमें यही है कि समझो आज क्वेरी आ गई, हम कल तक रिप्लाई कर देंगे, तो हमारा तो आई एम श्योर आई कैन नॉट कमेंट ऑन अदर प्लान, बट हमारा प्लान तो कंप्लायंट है ही ऑलरेडी, और कुछ उसकी माइनर क्वेरीज होगी हम जवाब भी दे देंगे और आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर देंगे, ऐसे हमने बताया। अब नाउ आफ्टर दैट
he can simply immediately put on vote, or instead of giving 10-12 days, he can reduce that time cycle to 3-4 days. वो होम बायर के इंटरेस्ट में ही इज ऑफ द व्यू कि बेटर टाइम, बड़ा टाइम लाइन रखेंगे, बट नाउ टाइम कंस्ट्रेंट है और इस बार सब लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो 3-4 दिन का वोटिंग टाइम रख के 6-7 तारीख तक वोटिंग खत्म करके 8 तारीख तक सबमिट हो सकता है. So that part, once the query comes and we answer and we inform you, you can request him or talk to him on whatever manner and try to see कि इस तरीके से हो तो फिर 8 तारीख तक हो जाएगा. Correct. Because in the minutes of the meeting which are shared with us, again it is said that 7-8 days as you have put it, and also that the NBCC and they mentioned your plan also had some compliance issues. And as you say, it's still possible. I just want to wish all the best, because I feel now Suraksha has covered what the home buyers' queries were. Apart from the fact of that 400 crore which you have also highlighted, that you cannot specifically earmark that land parcel because of the constraints. So thank you very much for this interaction, and thank you for coming out in this manner. Thank you, sir. Thank you. Next, Karan, next, Mr. Shashikar. Welcome, Shashi ji. Good afternoon, Alok ji and team. Good afternoon, sir. And we are really very happy. आपने जो revised plan दिया है, and I hope everything will get success. Most of the questions Premji and others have also taken it. So I just wish that it should not be like again NBCC or 2 साल waste हो जाए, ये हो जाए. And I hope that the Suraksha will come and no legal formalities or no litigation. We don't want any litigation now. Absolutely. We want that the project should start. लिटिगेशन के लिए ही, अवॉइड करने के लिए ही हम कोशिश कर रहे हैं यमुना अथॉरिटी से डिस्कशन करने का, यस बैंक से करने का, डिसेंटिंग की अंडरटेकिंग दे दी. तो हर एंगल से जो लास्ट टाइम लिटिगेशन के मुद्दे थे, दैट वी आर ट्राइंग टू कवर दिस टाइम. बट यस, यमुना अथॉरिटी हैज टू अग्री दी प्रपोजल, ये अपने आप में है. बट टुडे ऑल्सो मेरे प्लान में जो ट्रीटमेंट है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, यू कैन चेक विथ योर लॉयर्स, it is very much within the provisions of the code and it is in line with the directions of Supreme Court. So मुझे नहीं लगता इसको अप्रूवल होने में ज्यादा टाइम लगेगा, बट दैट पार्ट वी हैव टू सी. बट इतना है कि हम अपनी साइड से पूरी एफर्ट करेंगे, और ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑल्सो तो हम लोग अगर इम्प्लीमेंटेशन कमिटी में है तो वी हैव ऑलरेडी पुट क्लॉज. हमने डिसीजन कमिटी पे रखा ही नहीं, हमने बोला कमिटी को कंस्ट्रक्शन करना ही है जो अवेलेबल कैश फ्लो का है, क्योंकि काम तो आगे बढ़ेगा ना. तो वो हमने बोल दिया है प्लान में, अगर प्लान अप्रूव होता है तो एज इज होता है, विच हैज दिस बाइंडिंग क्लॉज ऑन देम आल्सो. ओके सर. सो आई actually this was I'm associated with 2 of the projects. One is the Classic. I am a president of the Classic Association, and second I am involved in KP1 plot also. So regarding that incomplete part of the KP1, मेरा 2-3 बार सुरेश बंसल जी से भी काफी डिस्कशंस हुआ इस मैटर में कि वहां पे बहुत सारी अनियमितताएं हैं. देयर इज नो रोड, नो सीवरेजेस, एनीथिंग एल्स. हालांकि वो बता रहे थे कि एज पर द रिपोर्ट वो कंप्लीट है, बट नथिंग इज देयर. टेम्पिल वैम्पिल कुछ भी नहीं बना हुआ, कोई सड़क नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सीवरेज लाइन नहीं है. तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑफ द प्लॉट्स इज ऑलमोस्ट ओनली 15 to 20% इज देयर. अगर हम थोड़ा सा उसको कंप्लीट करने के लिए, और जैसे अगर आप आते हैं और उसके ऊपर अगर ध्यान देते हैं, तो एंटायर दिस KP1 विल इम्प्रूव इन अ वेरी लेजिटिमेट मैनर एंड दिस थिंग. नहीं, अभी COC अप्रूवल हुआ ना तो हम लोग डिसइंटीग्रेट कर देंगे और फिर प्रोजेक्ट वाइज डिस्कशन शुरू कर देंगे. और ये सारी चीजें आप लोगों की इनसाइट्स, और आपको ज्यादा पता है, ऑनेस्टली बोलूं, हमने तो ड्यू डिलिजेंस किया इन लिमिटेड पीरियड, बट यू गाइज आर डीलिंग एंड सफरिंग सिंस सो मेनी इयर्स. तो आपसे ज्यादा बेटर नॉलेज हमें नहीं है. सो हम लोग आपकी गाइडेंस लेंगे. एज सून एज COC is approving our plan, we will immediately start interacting with each project के जो मेन लोग है, and try to work on project specific planning, because अब ये तो ग्लोबल लेवल हो गया, अब तो इसको ब्रेकअप करके प्रोजेक्ट लेवल एंड देन टावर लेवल जाके कंप्लीट करना होगा.
तो वो हम एक साथ करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट. सर थैंक यू वेरी मच एंड वी विश यू गुड लक. और हमें तो घर चाहिए आलोक जी. थैंक यू जी. श्योरली मिलेगा. नेक्स्ट परिमल जी, वेलकम. So I think almost 2 घंटे होने आएंगे. I think 1 or 2 more people we can take and then By 1 o'clock we will take the queries. Have 2 minutes last closing remarks and then we close this webinar. परिमल जी बताइए quickly. परिमल जी. परिमल जी. करण इतनी देर किसी और का ले लीजिए. नेक्स्ट. हाँ किसी और का ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ तब अपन टाइम यूटिलाइज करें प्लीज. सौरभ जी वेलकम. बताइए सर. सौरभ जी. You can hear me, Alok? Who is this? परिमल जी या सौरभ जी? Saurabh है. हाँ सौरभ जी बताइए. Alok, Prateek and Devang, I think thanks. You have been running this very professionally, and as you said, Alok, we can clearly see a change between what was there last time and now, and specifically 2 items, which is the 400 crores earmarked and the 25% discount on the maintenance piece is, shows the real caveat. I think my questions are 2, and they are in line with what Jayshree ji asked and Naresh ji asked. Since there is a lot of, trending in our mind on JP's possibility to join your hands, and that's because one clause which you have shown in your, resolution plan, that you can also partner with someone. Can you be very clear that, no matter what, a player like JP can never come in, because that's one of the major barriers in our mind when we look to a Suraksha player. So in your resolution plan, if you can be very clear that sort of thing is a non-compliance for you. Just like an audit committee, it's a big barrier in our mind. So I don't think we can bear anything like JP coming back again. So can you be very clear? मैं आपका पॉइंट एड्रेस कर देता हूँ. 2 मिनट का काम है. आप वो क्लॉज पढ़िए दोबारा. उसमें एलिजिबल वर्ड लिखा है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरे को तो एक प्लान का एक वर्ड याद है. एलिजिबल वर्ड लिखा है. Eligible under section 29A. Only those players we can partner, not otherwise. JP is not eligible under 29A, being erstwhile promoter. So therefore, there is no question of partnering with JP group. Okay. And apart from that clause, मैंने last time भी clarify किया था. Again, I am clarifying कि हम लोग independent है. There is no one. We are self capable, self sufficient. हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास मेहनत करने का एटीट्यूड है, अप्रोच है, एंड वी विल डू इट आवरसेल्व्स. हमें कोई पार्टनरशिप अभी करने की जरूरत लग नहीं रही है. और 29A के हिसाब से आई कैन नॉट पार्टनर विद जेपी बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल, एंड आई हैव सेड वेरी क्लियरली एलिजिबल पार्टनर. Secondly, I just want to add to this point, Saurabh ji. In our plan, we have specifically mentioned, and out of that there has been argument by JAL that you cannot terminate the contract. We have specifically said from the day one we want to terminate all the contracts. बेटा कौन मना कर रहा है? वीडियो आ रहा है. अरे बेटा अरे ये वेब चल रही है अभी. Saurabh ji, it is very important. It is important that we have mentioned that JAL contract has to be terminated on the day one, because we know that if there is anything like that, we will not be able to continue the work. And we have your point, eligibility point is very clear. If we do anything with anyone who is not complied with 29A, it is a contempt. और एक और बात बता दूं सौरभ जी कि मुझे पता चला है कि 30 पेज का लेटर COC को गया है फ्रॉम JAL, wherein they have said both the plans are not compliant. अगर उनको हमारे साथ कुछ भी होता तो दे वुड हैव सेड सुरक्षा प्लान है, आप उसको करो. उन लोगों ने तो हमारी भी प्लान की खामियां निकाली है, जो मैंने थैंकफुली टू देम अपने प्लान में कवर की, रिवाइज प्लान में, बिकॉज वो सारी चीजें जो फीडबैक मिले इधर उधर से डिज्नी पे आकर के इसके अंदर न्यूज पे आ. एक मिनट, हु इज दिस स्पीकिंग बीच में? ओके, एनीवे सौरभ जी, सो वो भी हम
आप देखिए, अगर वैसा है तो वो लैंग्वेज आप देखिए, आपको कंफर्ट आएगा, और बाकी मेरा क्लॉज बहुत क्लियर है और मैं भी बहुत क्लियर हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ जी. So thanks. I think the reason I said this is I think of late there is a lot of upfront and direct discussion happening between the home buyers and yourselves. So I just wanted to make sure that you at least also understand an apprehension, because आपके रिस्पॉन्स में वो एलिजिबल पीस पॉसिबली हाईलाइट नहीं हुआ है, लेकिन वो क्लॉज हाईलाइटेड है कि देयर इज अ चांस. सो इफ यू कैन एड्रेस दिस इन योर रिप्लाई इट विल बी गुड. सेकंड अगेन आई थिंक नो आई विल अपनी वो क्लॉज डाल के मैं एलिजिबल हाईलाइट करके क्लैरिफिकेशन भी देता हूं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, Khamesera also highlighted it's in the hello Alok ji. Hello Alok ji, this is Parimal from Casa Isles. Parimal. I don't have any question after your detailed presentation, your webinar. I think all the apprehensions from home buyers would go after today's detailed discussion and seeing the intent of Suraksha. Let me tell you sir, the sentiments are like this कि अगर आप elections करवा लें कल between NBCC and Suraksha will perform better than Mamata Banerjee. मतलब जो बंगाल में जो उनकी परफॉर्मेंस है उससे बेटर करने जा रहा है, वरना गड़बड़ हो जाएगी. उससे बेटर करने जा रहा है सुरक्षा. मतलब दिल की इच्छा, सेंटिमेंट्स आर लाइक दिस कि दे हैव ट्रस्टेड NBCC and they are very disappointed with NBCC. So they have full faith in Suraksha and we can see the intent of Suraksha this time, and after I don't think so we have any apprehensions whatsoever sir. Thank you sir. Thank you. Next question. हाँ जी. सौरभ है. हाँ सौरभ जी, आपका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, बताइए. आपका बीच में मैंने पॉइंट आउट किया था आपने. आई थिंक यू हैव कम फॉरवर्ड टू आल्सो गिव अ टावर वाइज प्लान. अगर आप द फंड एलोकेशन इज आल्सो यू कैन इंक्लूड, इट विल बी मच क्लियर एज ही सेड. नहीं हो पाएगा बिकॉज दैट इज डिटेल एज आई सेड कि COC अप्रूवल के बाद. कौन है? सौरभ जी. अंडरस्टूड. सौरभ जी, COC अप्रूवल के प्रोजेक्ट वाइज प्लानिंग शुरू कर देंगे आप लोगों के साथ. सो उसमें हम ये सारी चीजें कवर करेंगे उस समय. ठीक है. Got it. Thank you sir. Thank you Prateek. Alok, I think Saurabh Trivedi this side now. Thank you Alok. Thank you for giving me the opportunity. Sure. Thank you sir. So sir, my question is, I am Saurabh Trivedi. Definitely last time also so again Saurabh. Yes. So last time also sir we gave the voting to, I gave the voting to Suraksha only, and I was really very much disappointed by the delay. But yes, this time also sir definitely it will be going to Suraksha. I think the overall sentiments are quite high and positive towards Suraksha this year. My sir booking was basically Udan. And I am having just one proposal that you should basically add in your offer, that if anybody wants to come out of it, you please, I don't want any interest, you deduct 10%, 15% also from the principal amount and pay upfront. सर ये अभी क्या है ना, 6,000 करोड़ का काम है, तो हम ये अपफ्रंट वाला अभी नहीं कंसिडर कर सकते ऑनेस्टली. अरे सर प्रिंसिपल लोग तो इंटरेस्टेड हो रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ देखेंगे ना सर. आप आगे जा रहे हैं, अगर प्लान अप्रूव करा दिया आप लोगों ने तो फिर देखेंगे ना ये सारी चीज केस टू केस पे कि नहीं इस तरीके का हम बोल सकते हैं, बिकॉज इट विल गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर पीपल, बिकॉज लार्जर पीपल नीड्स टू गेट दी होम्स, एंड उसके लिए सारे रिसोर्सेज अलोकेट किए हुए हैं. तो हम कोई और डिपॉजिटर्स को भी नहीं दे रहे अपफ्रंट, किसी को नहीं दे रहे अपफ्रंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. थैंक यू. Thank you, sir. So, Alok, I think most of the questions has been covered, and it has been 2 hours. We can conclude the presentation, sir. Okay, fine. So, my dear friends, thank you. If there is anything, you can just mention that. If there is anything, we can definitely answer through the mail. That's not problem. Okay, fine. So that you have already said, so I need not say. Thank you, my dear friends. मैं सिर्फ लास्ट चीज ये बोलना चाहूंगा सबको कि आप लोग इस बार हमने अपने सभी कुछ बेस्ट बेट दे दिया है. ओके, बैंक्स को भी और आप लोगों को भी. बैंक्स को हमने इसीलिए दिया है कि आपका एप्रीहेंशन दूर करने के लिए, कि आप लोगों को हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि बैंक्स में वोट फॉर एनी प्लान, वो आपको पता नहीं चलता है.
इस बार हमने वो डाउट को दूर करने के लिए हमने बैंक्स का सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया हुआ है, एंड दैट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट शुड डेफिनेटली गिव यू कंप्लीट कॉन्फिडेंस कि आप लोग सिर्फ सुरक्षा को वोट करें इफ एट ऑल यू फील कि सुरक्षा के साथ काम करना है आपको आगे, बिकॉज इफ यू वोट फॉर बोथ यू आर रनिंग अ रिस्क ऑफ वोटिंग अस आउट। वो चीज नहीं होगी। आप लोग बैंक्स को रखो ध्यान में, बात करो उनसे, हमने बहुत क्लियरली उनके लिए बहुत बेटर ऑफर कर दिया है, आप लोग उनसे टच में करो, बात करो, मेरी बात चल रही है, देयर इज नो इश्यू व्हाटसोएवर एंड यू कैन वोट ओनली ऑन सुरक्षा प्लान जब भी वोटिंग पे जाता है। अगर दोनों कंप्लायंट होते तो, और अगर एक ही कंप्लायंट होता है और हमारा कंप्लायंट होता है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, देन तो इट इज अ सिंपल थिंग टू डू। बट अगर दोनों भी होता है, प्लीज आप लोगों को अगर हम चाहिए तो यू हैव टू वोट ओनली फॉर सुरक्षा रेजोल्यूशन प्लान, और आप बैंक से कॉन्फिडेंस ले सकते हो। हमने सिर्फ बैंक का इसीलिए बढ़ाया है कि वो उन लोगों को भी जस्टिफिकेशन ही नहीं मिले कि वो लोग कैसे हमारा प्लान नहीं अप्रूव करेंगे, बिकॉज देयर इज रिमार्केबल डिफरेंस। इफ देयर इज रिमार्केबल डिफरेंस दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ जस्टिफिकेशन इंटरनली। So therefore वो नहीं होगा इस बार। इस बार banks are with us, you are with us, and we can together, all of us can make this success. And यमुना अथॉरिटी से भी हमारा डिस्कशन चल रहा है to amicably resolve, yes बैंक से भी चल रहा है। all parties who are going to litigate, हम उनसे डिस्कशन करके ट्राई करेंगे कि लिटिगेशन खत्म हो और जल्द से जल्द हम ड्राइवर सीट पे आए और काम शुरू हो। और ये सब जो डिस्कशन 4 साल से चल रहा है वो डिस्कशन ही चल रहा है, काम तो शुरू हुआ ही नहीं। तो काम शुरू हो और खत्म हो, ये एंडेवियर है हमारा। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमें चाहते हो तो यू जस्ट वोट फॉर सुरक्षा ओनली, दैट इज द थिंग आई वुड से। एंड ऑल दीज एफर्ट्स is to give you comfort that we are serious, we are committed, we have resources, we are accountable, we are responsible, we are there and our skin is in the game। 2000 करोड़ की वर्किंग कैपिटल लाइन ला रहे हैं, वो हम लोग अपने पैसे, मतलब इट इज ऑन आवर ग्रुप्स क्रेडिबिलिटी बैंक लाइन दे रहा है, और अदरवाइज जीपी ग्रुप को कोई पैसा नहीं देता। ना हम एग्जिस्टिंग बैंक से मांग रहे कुछ भी, और ना हम अपना 250 करोड़ भी इक्विटी खुद की जेब से ला रहे। वी आर हैविंग 2250 करोड़ एट स्टेक, बट वो उससे भी बड़ा आवर रेप्यूटेशन इज एट स्टेक, विच एट नो पॉसिबिलिटी, नो चांस कि हम उसको स्टेक पे डालें। सो आई humbly request you to vote only for Suraksha Group. Thank you so much. Thank you so much. With this we close. Thanks a lot.